Hello students, we are starting with the fourth part of the chapter The Enemy, written by Pearl S. Buck. Till here we have read about Dr. Sadao, in whose house a person has come who was the prisoner of war. And now Sadao had treated on him. He was well now, but now Sadao is telling about him to his governor general. Because Dr. Sadao was a patriot himself, so that's why he was telling about this person, this criminal, about to the general. And general had suggested to send his assassins to the house of Dr. Sadao. Assassins means murderers. To the house of Dr. Sadao, so that the person, the American, could be murdered without being noticed by anyone. So now we are starting with this chapter, with this part of the chapter. Sadao considered that perhaps would be best. It means the idea that was given by the general to send the assassins to Dr. Sadao's house. Sadao was considering this idea best. That perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hannah. He left the general's presence and went home thinking over the plan. Now he was thinking about the plan that the assassins would come at night, nobody would notice them, nobody would see them, and these murderers, these assassins would do their work silently. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would not worry now, he would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house. He would not be telling Hannah about these assassins because she was a lady and she could get afraid after hearing about the murderers. And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. Now Dr. Sadao is thinking कि ये नीड भी है जापान को, जापान जैसे कंट्री को जिस कंडीशन में है वो, वहाँ पर इन assassins की नीड भी पड़ती है. How else could rulers deal with those who oppose them? कि रूलर्स कैसे उन लोगों से डील करें जिनको वो जो उनको अपोज करते हैं, गवर्नमेंट को अपोज करते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे असैसिन्स ठीक हैं कि अगर कोई अपोज कर रहा है उसे डायरेक्ट साइलेंटली मरवा दिया जाए. ही रिफ्यूज टू अलो एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. It means he was thinking that his reason, his logic was right. That person should be murdered, should be killed. And he was thinking all these things and he was going to the room where that American was lying. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed. अब उसने देखा कि वो तो बेड से बाहर है वो अमेरिकन, and preparing to go into the garden. He was going into the garden. Dr. Sadao said, "What is this?" he exclaimed. "Who gave you the permission to leave your room?" And then that person, his name was Tom. The American his name was Tom. "I am not used to waiting for permission. I do not wait for the permissions. I want to go out and that's why I am going," Tom said gaily. Tom said happily. "Gosh, I feel pretty good again." And Tom is saying कि I feel pretty good again. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. But will the muscles on this side always feel stiff? Now he was telling about his muscles कि क्या ये muscles जो है मेरी ऐसे ही stiff रहेंगी. And एकदम से जैसे ही उसने बोला, डॉक्टर सदाओ जो थे वो अपने डॉक्टर की फॉर्म में आ गए एकदम से. Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot about the assassins, about the murderers, and he just came to do his duty now. He forgot all else. Now I thought I had provided against that. Now he is saying कि मे बी शायद मैंने कुछ ऐसा मेडिसिन दी है जिससे कि स्टिफ हो गया मसल्स. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, उसकी शर्ट ऊपर की उसने, एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार. और हीलिंग स्कार मीन्स जो अब इम्प्रूव हो रहा है उस निशान को, जो भी वो जख्म था उसको देखने लगे. मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट, कि एक्सरसाइज से तो ये ठीक नहीं होगा बट मसाज से हो जाएगा. इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, कि चलो ठीक है मुझे कोई इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. तो यंग मैन का जो फेस था वो यहाँ पर बताया गया कि द फेस वॉज वेरी वीक अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. और जो उसका ब्लॉन्ड बियर्ड, जो उसकी बियर्ड थी वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी थी अभी तक, बिकॉज उसने अभी पता नहीं कब से वो
सी में पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो बियर्ड जो उसकी थी बढ़ चुकी थी, बट उसमें से भी उसका फेस जो था दैट वाज लुकिंग वेरी वीक. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू. इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे. नाउ एक तरह से ये इसका थैंक्स है दैट ही वाज गिविंग टू डॉक्टर सदाओ इफ ही हैडंट मेट अ जापानीज लाइक यू. कि इट मीन्स अगर मैं आपके जैसे जापानीज से नहीं मिला होता तो मैं आज अलाइव नहीं होता, एंड आई नो दैट. Sadao bowed, but he could not speak. Sadao remained silent. Sure, I know that, Tom went on warmly. Tom is saying कि yes, मुझे पता है कि मैं alive नहीं होता. His big thin hands gripping a chair. Now he was just gripping a chair. His hands were white at the knuckles. और pure white उसके hands थे. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. कि अगर तुम्हारे जैसे ही जापानीज होते तो वार ही ना होती. Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better. Difficulty means he didn't want to say anything. कि अभी तो वो गवर्नर जनरल के साथ जाके इसको मारने की प्लानिंग करके आया है, and that's why he could not say anything. And now I think you had better go back to bed. He asked the American, that person Tom, to go to bed. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. Sadao slept badly that night because he was just waiting for the assassins. Time and time again he woke thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken. कभी उसे लगता कि हाँ मुझे footsteps की आवाज़ें आ रही हैं, कभी लगता कि कोई लकड़ी जो है पैरों के नीचे आकर वो टूटी है, और a stone displaced in the garden, कि जैसे मान लो कोई a noise such as man might make who carried a burden. It means जब assassins उस person को लेकर जा रहे होंगे तो उसकी वजह से पत्थर पर पैर आ गया और वो पत्थर चटका जो आवाज़ आती है कहीं और गिरने की. सो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टोन, ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स. सो ही वॉज जस्ट वेकिंग अगेन एंड अगेन hearing these sounds, and he was thinking that maybe the assassins had come and they were just taking that person with themselves. The next morning he made the excuse to go first into the guest room, कि जाकर मैं देखूं तो सही एक बार. सुबह सुबह उठते ही वो गया वहाँ. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed, कि अगर वो चला गया होगा तो उसके बाद मैं हैना को सब कुछ बता दूंगा. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि वो तो अभी तक वहीं पर ही है. shaggy means dirty सा, कि वो अभी तक वो जो पर्सन है वो यहीं है. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. That person was sleeping very peacefully. Dr. Sadao said to Hannah, he is asleep. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah again said. Hannah whispered her old refrain. Refrain होता है कि कुछ बोलना वो चाहते हैं कुछ और, लेकिन बस इतना ही बोलकर वो चुप रह जाती है. What shall we do with him? Sadao shook his head. I must decide in a day or two. He promised he didn't tell about that decision that he and Governor General had taken. But certainly he thought maybe the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows. कि नेक्स्ट डे हो सकता है वो मर्डरर्स आ जाएं, और अगले दिन जो अगली रात को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, एंड ही वॉज लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज, की लकड़ियाँ जैसे जो हैं पेड़ जो है हवाओं की वजह से झुक जाते हैं, एंड विस्लिंग पार्टीशंस. और बिकॉज डोर खोला हुआ था, उस जहाँ पे वो प्रिजनर लेटा हुआ था वो डोर खोला हुआ था, तो हवाओं की वजह से जैसे विस्लिंग की आवाज़ें आ रही हैं. Hannah walked to. Ought we not to go and close the sick man's partition? Now Hannah didn't know anything about their decisions, their plan, and she was asking we should go and close the door of that sick man. No, Sadao said he is able now to do it for himself, कि वो अपने आप दरवाज़ा बंद कर लेगा. But the next morning the American was still there. Then the third night of course must be the night. अब second day भी वो वहीं पर ही है. डॉक्टर सदाओ सोचता है कि मे बी चलो थर्ड नाइट को आ जाएंगे. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन. अब थर्ड नाइट जो है बहुत तेज़ बारिशें भी होने लगी, एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. जैसे पूरा झरने का झरना बह रहा है, मतलब इतनी तेज़ बारिशें हो रही थी, और ऊपर से जो छत पे से भी जो बूंदे गिरते हैं, बारिश गिरते हैं, इट मीन सारी बारिशों की आवाज़ें काफ़ी तेज़ आ रही थी. सदाओ स्लेप्ट अ लिटल बेटर, बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट. कुछ क्रैश, कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो एकदम से जाकर बैठ गया. And Hannah is asking, what was that? The baby woke at her voice and began to wail.
और यही बोलते ही हैना की आवाज़ सुनते ही बेबी भी जाग गया एंड ही वॉज क्राइंग नाउ आई मस्ट गो एंड सी। डॉक्टर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन हैना उसको रोक लेती है, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस। ये वो उसको रोक देती है, वो उसको डर को देख के, सदाओ के डर को देख के, हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, कि एकदम से देखा कि सदाओ के फेस पर एक डर आया हुआ है और हैना भी एकदम साइलेंट हो गई है कि पता नहीं क्या हुआ है। देयर वॉज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रैप्ट इन टू द बेड, कि सदाओ ने उसको जाने भी नहीं दिया एंड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इट मीन्स उसका सदाओ का फेस देखकर वो इतना डर गई कि समथिंग बैड वॉज गोइंग ऑन। दे रिमेन देयर साइलेंटली एंड टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इन टू द बेड, वापस लेट गए, द बेबी बिटवीन देम। अगेन येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, देयर वॉज द यंग मैन। नाउ अगले दिन भी देख रहे हैं तो वो यंग मैन वहीं पर ही है, इट मीन्स रात को फिर असैसिन्स नहीं आए। ही वॉज वेरी गे, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ऑलरेडी वाश्ड, नहा चुका था वो, एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। ही हैज आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, एक दिन पहले उसने रेजर भी मांगा था, एंड नाउ ही हैज शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज cheeks. He was looking happy and improved. I am well, he said joyously. Sadao drew his kimono around his weary body. Weary होता है tired, because he was mentally so much tired, Dr. Sadao, that weariness was being shown on his face. He could not, he decided suddenly go through another night. कि अब 3 रातें तो हो चुकी, अब मैं 4th night की वेट नहीं कर सकता. Dr. Sadao was thinking, it was not that he cared for this young man's life. मुझे इस पर्सन की लाइफ से कोई मतलब नहीं है. नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. बस मैं इस स्ट्रेन को, इस स्ट्रेस को अब और बियर अप नहीं कर सकता. डॉक्टर सदाव वॉज थिंकिंग दिस एंड डॉक्टर सदाव सेड टू दैट पर्सन, यू आर वेल, अब तुम ठीक हो चुके हो. ही लोअर्ड हिज वॉइस, और उसने अपनी आवाज़ भी धीरे कर ली. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. कि आज तुम इतने ठीक लग रहे हो मुझे कि आज रात को मैं तुम्हें अपनी बोट दे देता हूँ, उसमें फूड और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रख दूंगा, तो तुम वो जो दूर आइलैंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम वहाँ तक अपने आप उस बोट को चलाकर लेकर जा सकते हो. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. ये कोस्ट के किनारे के वैसे भी इतना पास है कि इसको फोर्टिफाई भी नहीं किया गया. इसकी कोई गार्ड भी नहीं करता इसे, कोई इसको सराउंडिंग फेंसिंग भी नहीं की गई है. नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई रहता भी नहीं यहाँ पर. बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, बिकॉज तूफान आते ही ये जो आइलैंड है ये पानी में डूब जाता है. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन इस टाइम कोई स्टॉर्म नहीं आएगा. यू कुड लिव देयर until you saw a Korean फिशिंग बोट पास बाय. तुम वहाँ पर तब तक रहना जब तक तुम्हें कोरियन फिश नहीं मिल जाती, कोरियन फिश जाती हुई नहीं दिखाई देती. ओनली यू हैव टू गो विद द कोरियंस. कोरिया के जो लोग होते हैं, दे आर नोन एज कोरियंस. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर. कि वो आइलैंड के बिल्कुल पास से इसीलिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी डीप है. फैथम्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. The young man stared at him, slowly comprehending. Now, the young man was understanding. Comprehending means understanding. और वो उन्हें डॉक्टर सदाव को घूरता रहा. Do I have to go? मुझे जाना पड़ेगा. I think so, Sadav said gently. You understand? It is not hidden that you are here. Now Sadav is saying कि अब किसी से छुपा हुआ नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, और तुम्हें भी समझ आ रही है that you have to go. The young man nodded in perfect comprehension. Now, the young man understood completely and he nodded his head. Okay, he said simply. Sadav did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. Pawn shop जो होती हैं, वहाँ से सामान वाली शॉप्स से वो इसके लिए खाना भी लेकर आया, बॉटल्ड वाटर भी लेकर आया, साथ ही साथ क्विल्ट्स भी लेकर आया, 2 क्विल्ट्स भी लेकर आया, ताकि इसको वहाँ पर जितने भी दिन रहेगा ये तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर. और शाम होते ही इन्होंने पोस्ट, जो पानी के पास जो बोट बांध दी थी, फॉर द टाइड वॉज हाई. एट दैट टाइम टाइड्स वॉज, लहरें जो थी हाई थी काफ़ी. देयर वॉज नो मून, और मून नहीं था उस दिन, अंधेरा था.
So it was easy for them to go and he worked without a flashlight. और बिना flashlight के उन्होंने सारा काम किया ये. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. हैना को भी नहीं पता था ये सब, और जब वो घर वापस आया डॉक्टर सदाओ उसको छोड़कर, तो एंड सो हैना न्यू नथिंग, कि हैना को भी कुछ भी पता नहीं चला. अभी उसको छोड़कर नहीं आया, सिर्फ प्लानिंग करके आया, अपनी बोट को वो बांधा है, सारा सामान उसके ऊपर वो रखा है क्विल्स वगैरह के साथ. यूमी वॉज हेयर टूडे. नाउ जब वो घर आया तो हैना कहती है हैना को पता ही नहीं है कुछ भी, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग दैट हर हस्बैंड हैड कम फ्रॉम द वर्क. यूमी वॉज हेयर टूडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर. दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम. तो उसने हैना ने डॉक्टर सदाओ को सर्व किया खाना, बट वो चाहे कितनी ही मॉडर्न थी लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाती थी, बाद में खाती थी. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. नाउ शी वॉज टेलिंग अबाउट यूमी, कि यूमी जो थी बहुत रो रही थी. शी वेंट ऑन विद द साई, शी मिसेज हिम सो, बहुत ज़्यादा मिस करती है वो उस बच्चे को. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन. डॉक्टर सदाओ सेड टू हैना. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. जो फाइनल चेकअप था वो सारा का सारा उसने उस अमेरिकन प्रिजनर का किया. द पल्स वॉज इरेगुलर. पल्स जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी, बट नेचुरली दैट वॉज बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. उसने जाना है, नर्वस होगा, तो दैट्स वाई हिज पल्स वॉज हाई एट दैट टाइम. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड. बड़ा जैसे एक नर्वसनेस में आईज उसकी बर्न, मतलब लाल दिखाई दे रही थी, और लिप्स प्रेस थे. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड. गले के निशान जो थे रेड थे पूरे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन. फिर से कहता है कि मुझे पता है दैट यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन नाउ. पहली कब बचाई है? जब उसको उन वुंड्स से, उन जख्मों से बचाया गया है जो उसको चोट लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी. Not at all, Sadao said, it is only inconvenient to have you here any longer. Sadao said, I am not saving your life. It is only inconvenient for me also. I am feeling uncomfortable having you here in my house. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. पहले तो उसे वो फ्लैश लाइट दे नहीं रहा था, बट लास्टली उसको दे दी. छोटी सी लाइट थी ये, और ये डॉक्टर सदाओ खुद यूज़ करता था जब उसे इमरजेंसी में रात को बुलाया जाता था कहीं किसी केस पर. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. नाउ डॉक्टर सदाओ सारी उसको आगे का भी बता रहा है कि अगर बाई चांस तुम किसी बोट को, कोरियन बोट तक पहुंचने से पहले, जब तक तुम्हें कोरियन बोट नहीं मिलती, और बाई चांस तुम्हारा खाना, योर फूड रन्स आउट, तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है, तो सिग्नल में 2 फ्लैशेज. 2 फ्लैशेज इस फ्लैश लाइट के मुझे दिखाना. लेकिन कब? एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम, बस जब सन जो है होराइजन से ड्रॉप, सनसेट हो रहा होगा, एट दैट टाइम ओनली. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस. ना तो पूरी लाइट में वो दिखाई नहीं देगा, और ना ही पूरे अंधेरे में वो, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि उसे कोई भी देख लेगा अंधेरे में उस लाइट को. लेकिन होराइजन के टाइम, जिस टाइम सन जो है ड्रॉप हो रहा होगा, डस्क के टाइम पे, ट्वाइलाइट जब होती है, तब आप तुम मुझे सिग्नल देना. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस. अगर तुम ठीक हो बिल्कुल और वहाँ पर हो अभी, तो मुझे सिग्नल दे देना एक बार का. इट मीन्स वो बता रहा है सिर्फ एक बार का सिग्नल होगा, तो इट मीन्स यू आर स्टिल देयर एंड यू आर राइट, क्वाइट राइट. अगर तुम 2 सिग्नल्स देते हो तो इट मीन्स आप, तुम्हारा खाना फिनिश हो गया है. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच. तुम वहाँ से फ्रेश फिश को खा सकते हो, बट यू मस्ट ईट देम रॉ. कच्चा ही खाना. अ फायर वुड बी सीन. उसे पकाना मत, बिकॉज फायर जो है दूर से दिखाई देती है. ओके, द यंग मैन ब्रीथ. ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स. जापानीज क्लोथ्स वो पहन चुका था, विच सदाओ हैड गिवन हिम. एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड. जो उसके ब्राउन बाल थे उसके भी चारों तरफ उसने ब्लैक कपड़ा जो था बांध दिया. नाउ सदाओ सेड गो. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Now the American had gone. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. बस 2-1 बार उसकी लाइट दिखी जब वो रास्ता ढूंढ रहा था अपना, बट दैट वुड नॉट बी
suspected. He waited until from the shore there was one more flash. कि एक फ्लैश की और वेट की उसने कि जब वो शोर पर पहुंच गया. Then he closed the partition. अपना डोर उसने बंद किया डॉक्टर सदाव ने, और उस रात वो बहुत अच्छे से सोया. That night he slept well. You say the man escaped. This was the next day. The general asked faintly. Now the general is asking, you say the man escaped. वो आदमी भाग गया है, बच गया है वो. He had been operated upon a week before. एक हफ्ता हो चुका है उसको ऑपरेशन से. नोटिस दिस इज नॉट द नेक्स्ट डे कि 1 week had passed here, एंड उस जनरल का ऑपरेशन हुआ है एंड 1 week had passed now. An emergency operation to which Sadao had been called in the night. रात को सदाव को बुलाया गया था emergency में. For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. मतलब इतनी critical condition थी. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply. 12 hours तक तो बहुत critical condition रही, लेकिन उसके बाद जो था, जो जनरल था वो he was breathing now peacefully and he was demanding food also. Sadao had not been able to ask about the assassins. So far as he knew they had never come. और सदाओ जब उसकी critical condition है तो इस टाइम पूछ भी नहीं पाया assassins के बारे में, एंड सदाओ जानता भी था कि वो तो आए ही नहीं है कभी. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man smell out of it. सर्वेंट्स वापस आ गए. यूमी ने क्लीन भी कर दिया गेस्ट रूम और उसमें सल्फर वगैरह जला जलू गई ताकि उस वाइट मैन की स्मेल खत्म हो जाए, और कोई एक वर्ड भी नहीं बोला. नोबडी सेड एनीथिंग. ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस. क्रॉस मीन्स एंग्री. क्यों एंग्री था गार्डनर? बिकॉज वो क्रासेंथेमम्स जो फ्लावर्स थे वो नहीं लगा पाया था, अपने प्लांट्स नहीं लगा पाया था. ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रासेंथेमम्स. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Now it was time. Now Sadao thought that now it was the time that he would talk about that prisoner. Yes, Excellency, he escaped. अब वो उससे बात भी कर रहे हैं, और सदाओ को now said he coughed, signifying that he had not said all he might have said. बाकी तो कुछ नहीं बताया उसने कि मैंने उसकी हेल्प की है, मैंने उसको भगाया है. सिर्फ उसने इतना बोला कि प्रिजनर भाग गया. But he was unwilling to disturb the general further. He did not want to tell anything else. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? जनरल कहता है ये तो मैंने शायद तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उसको मार दूंगा. Sadao said, yes, you did, Excellency. Well, the old man said in a tone of amazement. Now he was very much surprised, General. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो जनरल कहता है, ओहो ये तो मेरी ही गलती हो गई है. अब लेकिन तुम देख तो रहे हो मैं कितना सफ़र कर रहा था, मैं कितना परेशान था. मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था और मैं प्रॉमिस भूल गया अपना. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, कि मुझे भी हैरानी हुई. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. जनरल कहता है ये मेरी बहुत केयरलेसनेस है. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी. लेकिन जनरल कह रहा है लेकिन तुम समझो मैं पेट्रियाटिक हूँ, मेरी पेट्रियाटिज्म की लैकनेस नहीं है ये कुछ भी, ना ही मेरी नेग्लिजेंस है ड्यूटी की. डेरेलिक्शन मीन्स मैंने ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं किया. ही लुक्ड एंक्शियसली एज हिज डॉक्टर. इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू? कि अगर बाई चांस इस बात को एक्सपोज हो गया तो तुम्हें तो पता ही है ना क्या होगा. ही लुक्ड एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर. और इसी लाइन से एकदम से डॉक्टर सदाओ को समझ में आ गया. Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended, he suddenly understood that the general was in the palm of his hand. कि जनरल खुद मेरी मुट्ठी में है. अब मुझे जनरल से डरने की नीड नहीं है, जनरल मुझसे डर रहा है कि तुम इस बात को बाहर एक्सपोज मत करना. And that as a consequence, as a result, he himself, Dr. Sadao, was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellence. कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा. He said to the old general, and to your zeal against the enemy. और मुझे आपकी जो आपका zeal है, आपकी पेट्रोटिज्म, आपकी लॉयल्टी, मुझे पता है. मैं आपकी इस लॉयल्टी के लिए भी कसम खा सकता हूँ. I know that you are very loyal and your zeal against the enemy also. The general murmured, you are a very good man, and closed his eyes. You will be rewarded. तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा. But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. लेकिन सदाओ को किसी और रिवार्ड की नीड नहीं थी. जब रात को वो वेट कर रहा था कि कोई फ्लैश लाइट आएगी आइलैंड से
कोई फ्लैश लाइट नहीं आई एट दैट नाइट. सो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, सदाओ हैड गॉट हिज रिवार्ड. कैसा उसका रिवार्ड मिल गया उसे? सदाओ हैड हिज रिवार्ड. ये एक एक्सट्रैक्ट में भी आ सकता है. हाउ सदाओ हैड गॉट हिज रिवार्ड? बिकॉज might be that prisoner Tom he had gone safe with the Korean ship. Sorry, it is Korean ship. There was no prick of light in the dusk. Dusk होता है शाम की लाइट. शाम, जो शाम होती है, dawn होता है सुबह. So उस शाम को कोई भी लाइट, फ्लैश लाइट नहीं शो हुई. No one was on the island. His prisoner was gone safe, doubtless. और डाउटलेस वो सेफ था बिकॉज उसको सदाओ ने पहले ही वार्निंग दी थी. ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट. सिर्फ कोरियंस के साथ ही जाना है. ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा. सदाओ थोड़ी देर खड़ा रहा वेरांडा पे. गेजिंग आउट टू द सी, उसी वहाँ पे देखता रहा सी को. फ्रॉम वैंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट. जहाँ से, वैंस मीन्स वेयर, फ्रॉम वेयर दैट यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, कि जहाँ से वो आदमी जो पहले आया था. एंड इन टू हिज माइंड, ऑल्दो विदाउट रीजन, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन. और अब उसको फिर बाकी सारे वाइट फेसेस, अमेरिकन जो थे, वाइट पर्सन जो थे, याद आने लगे डॉक्टर सदाओ को. अब उनको याद कर रहा है वो. द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना, कि जिस प्रोफेसर के घर पे वो हैना से मिला था. ही वॉज अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन. उसकी वाइफ भी बड़ी टॉकेटिव सी थी. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब वो काइंडनेस दिखाती थी लेकिन स्टिल वो शी वॉज अ वेरी सिली टॉकेटिव लेडी. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ अनॉटमी. अनॉटमी होता है जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करता है. फिर उसको अपना टीचर याद आया, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ. एंड देन ही रिमेंबर्ड इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, इट मीन्स जिसने ये बताया था कि जो भी ह्यूमन्स को स्टडी करना है, जिसने सर्जन बनना है, उसको अपने नाइफ से, जब तक उसको ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज ना हो तब तक उसे अपना नाइफ जो है नहीं चलाना चाहिए. एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नली लैंड लेडी. फिर उसे अपनी वो लेडी याद आई. स्लेटर्नली होता है डर्टी, जो डर्टी से दिखते हैं, अनटाइडी से, अनक्लीन से दिखते हैं. तो उसको अपनी वो लैंड लेडी याद आई, डर्टी सी. ही हैड हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका. Dr. Sadao could not find a place because he was a Japanese. When he wanted to live in America for his further studies, he could not find a place. But इस लेडी ने उसको प्लेस दिया था. The Americans were full of prejudice. Prejudice होता है a feeling of superiority for oneself or a feeling of dislike for someone else. Prejudice means कि किसी और के साथ की फीलिंग्स को डिफ्रेंशिएट करना. इट मीन्स डिसलाइक की फीलिंग होना किसी और के लिए. Americans were full of prejudice एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. और जब अमेरिकन्स किसी को लाइक नहीं कर रहे और उन्हीं के बीच में ही रहना एक जापानीज के लिए बहुत मुश्किल था. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, मतलब उन लोगों को लगता था अमेरिकन्स को दे वर सुपीरियर. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन. डिस्पाइज्ड मीन्स हेट. किस तरह से उसने उस गंदी सी लेडी को, इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन को हेट किया था डॉक्टर सदाओ ने. हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम. जिस लेडी ने जापानीज को, डॉक्टर सदाओ को लास्टली अपने घर में रहने की जगह दी, उस लेडी को भी ये हेट करता था डॉक्टर सदाओ. ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. जब डॉक्टर सदाओ को इन्फ्लुएंजा हुआ था तब उस लेडी ने ही इसको नर्स किया था, इसको केयर की थी इसकी. बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. बट स्टिल, फिर भी वो लेडी तब भी अपनी काइंडनेस के साथ साथ इसको मतलब इसको, जापानीज को, डॉक्टर सदाओ को उससे डिसलाइक ही होती रही थी. नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. और अब इसको इस प्रिजनर का भी फेस याद आ रहा है. टायर्ड सा, हगार्ड होता है टायर्ड, वाइट एंड रिपल्सिव, कि जिससे डिसलाइक हो. और ये अब जी लास्ट में खड़ा खड़ा सोच रहा है. स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. इट मीन्स कि ऐसा क्या है कि मुझे उन लोगों से नफरत भी है, मुझे वो लोग पसंद भी नहीं है कोई भी वाइट, बट स्टिल आई कुड नॉट किल हिम. सो द चैप्टर एंड्स हियर telling about this Dr. Sadao, his feelings, his double-sided feelings. He was in a dilemma. Dilemma होता है when a person is
हैविंग टू आइडियाज़, एक दो तरह के जो आइडियाज़ चल रहे होते हैं माइंड में। अभी ये किस डायलेमा में था कि वैदर टू सेव दिस अमेरिकन और वैदर टू जस्ट टेक हिम टू द पुलिस, कि या तो इसको पुलिस को सौंप दे या इसको बचा ले, टू जस्ट डू हिज पेट्रोटिक ड्यूटी और टू डू हिज डॉक्टर्स ड्यूटी। ये जो डायलेमा था इसका कि मैं क्या करूं, मैं अपने पेट्रोटिज्म शो करूं या मैं अपनी जो मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी है, व्हाट इज हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, ही वाज अ डॉक्टर एंड हिज फर्स्ट प्रेफर्ड ड्यूटी वाज टू save any patient. So that's why this dilemma is shown here clearly, and at last his duty, his professional duty also wins and his patriotism also wins, as he had told all the things about that prisoner to the general. I hope you have all understood this chapter very well. Thank you and have a nice day.